हाँ जी प्यारे साथियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜੇ, ठीक है। ये मैं तुहानू दसता भी इन्होंने गजनी ते गौरी ते जिहड़ा वा इन्हां दा एंड करता। ठीक है, गजनी बारे दसता, फिर गौरी बारे दसता, है ना, पाल वंश बारे दसता, राष्ट्रकूटां बारे दसता। ये मैं तुहानू पार्ट 1 दे विच सारा करवाता सीगा, जिहड़ा कि मैं तुहानू पंजाब बोर्ड दी बुक तो भी करवाया सी। उस तो बाद गल आउंदी NCERT दी कि इन्हां दा जिहड़ा दूजा चैप्टर है नवें राज और राज्य, है ना, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ NCERT ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਡੀ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ SST ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ठीक है, ये मेरे को NCERT की किताब आ, 7वीं क्लास की हिस्ट्री की किताब आ। ते इहदा चैप्टर हैगा वा दूजा, ते पेज नंबर हैगा वा, इहदा पेज नंबर हैगा वा 18 नंबर पेज, जिते साडी प्रशस्तियां बारे पूरी डिटेल दे नाल जानकारी पई आ। प्रशस्तियां बारे मैं पहला भी एक वीडियो पाई सी ते मैं दस्सिया सी भी ये NCERT दे विचों आया वा। ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀਆਂ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, कहते प्रशस्तियां में ऐसे ब्यूरे होते हैं जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में यह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। कहण दा भाव है कि प्रशस्तियां की सी, समझो इस चीज नूं। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ की आ, प्रशंसा करना। कहंदे राजियां दे शासकां दे बारे मन घड़त गल्लां जो सच नहीं सी, प्रशस्ति लिखण वाले नूं राजे वल्लों ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਠੁੱਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਮਨ ਘੜਤੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ, ਜਗੀਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਘੱਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਵਾਇਰਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਹਨਾ, ਨਿਊ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ YouTube ਤੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਇਰਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ SST ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇੜ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ SST ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 60 ਨੰਬਰ ਦੀ SST ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ SST ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ SST ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ SST ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, 500 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਟੱਪ ਗਏ ਉਦਣ ਮੈਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, SST ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਕੀ ਸੀ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ गई इस चीज की, ठीक है। उस तो बाद इन्हां ने बुक दे विच नागपट की प्रशस्ति दिती आ। नागपट राजा जिहड़ा सी ओहदी प्रशस्ति दिसी आ। ओहदे विच मैं ट्रांसलेट करके लिखिया, ये नागपट की प्रशस्ति दे विच की कहंदे आ, कहंदे ये संस्कृत भाषा विच लिखी गई, ठीक है। जिहड़ी नागपट की प्रशस्ति लिखी ये संस्कृत भाषा दे विच लिखी गई, जो कि मध्य प्रदेश दे ग्वालियर तो मिली। कित्थों मिली? मध्य प्रदेश के ग्वालियर तो मिली। इस विच नागपट के कम्मां दा वर्णन है। इत्थे बहुत वधा चढ़ा के लिखिया कि उड़ीसा के राजे नागपट राजकुमार अगे गोडे टेकदे सी। वेखो आपां की कह सकते हैं भी टेकदे ही कि नहीं। जे होई प्रशस्ति कीता उं ही बना के लिखता है ना भी गोडे टेकदे सी, कीता टेकदे कि नहीं, भावें अगलियां नासां च लहू वगा छड्डिया होवे है ना, ते उं ही लिखी जांदे आ। फिर ये कहंदे आ उसने कनौज के शासक तो जित प्राप्त की, बंगाल नूं वंग, ठीक है। बंगाल नूं प्रशस्तियां दे विच वंग लिखिया गया वा। इतिहासकारां ने सानू ब्रैकेट दे विच लिखता बंगाल नूं प्रशस्तियां दे विच वंग लिखिया गया। यह भी पॉइंट साडे लई इंपॉर्टेंट आ। ते गुजरात नूं प्रशस्तियां दे विच अनरत लिखिया गया वा, ते मध्य प्रदेश नूं मालवा लिखिया गया वा। मध्य प्रदेश नूं मालवा लिखिया गया, पॉइंट नोट करते जाओ, ठीक है। वनवासी नूं किरात लिखिया गया वा। ये जिन्नियां भी जगह वा ना, कहंदे ये वालियां जगह दे जिहड़े राजे सी ना, ठीक है, इन्हां राजां नूं नागपट ने हराया सी। झूठ ही लिखी जांदे आ, ठीक है, क्योंकि हैगी की आ ये प्रशस्ति आ, ते प्रशस्ति दा मतलब की आ, जो मर्जी लिख दो ते राजे तो जो मर्जी ले लो, ठीक है। ये सी मतलब ये सी साडा पूरा प्रशस्तियां वाला कंसैप्ट। फिर अगे कहते आ राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ब्राह्मण पत्रों को अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इत्थे इन्होंने दस्सिया, ओ ही सुन लो, आ पॉइंट सौखा वा, इनू लिखण दी लोड़ नहीं। आ तुसी की देख रहे हो, ये तामर पत्तर या तामर पत्तर, कहंदे तामर पत्तर कादे वास्ते यूज कीते जांदे सी, जदों भूमि दान दे विच देनी हुंदी सी ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਤਦਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਸੀ ਭੂਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। फिर ਇਹਨਾਂ ने साइड पे लिखा हुआ, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्र है, जिससे 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दी गई भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्थर जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। आ तुसी ना एक मोहर देख रहे होगे, मैं टेलीग्राम पे फोटो सेंड कर दूंगी। आ ताम्र पत्थर जिहदे नाल बन्ने है ना, आ एक मोहर दिस रही, कहंदे एक राजसी मोहर ही, कहंदे ਇਹ ਮੋਹਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ पिक्चर दी, आ वाली ये पिक्चर की आ, अलोरा दी गुफा दी पिक्चर आ। अलोरा दी गुफा दे विच इन्हां ने की कीता वा, नरसिंह ते विष्णु दे बारे कोई इन्हां ने मूर्तियां जड़ियां वा दित्तियां वा, ते इन्हां ने कहा वा भी ये राष्ट्रकूट काल दी कलाकृति आ। राष्ट्रकूट काल दी ये पॉइंट मैं पिछे जाके तुहानूं तां दस्सिया क्योंकि ये सीटेट दे विच क्वेश्चन आया सी। क्वेश्चन इदां ही, अलोरा की गुफा 15 का मनचित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, केड़े काल की कलाकृति है? राष्ट्रकूट काल की कलाकृति है। सी टैक दे विच ये क्वेश्चन आया सी, मैं तां करके बैक जाके तुहानूं दसता। चलो आपां प्रशस्तियां बारे कर लिया, फिर आपां ताम्र पत्तरां बारे कर लिया। अगले पॉइंट ते आ जाओ। अगले पॉइंट दे विच कहंदे आ 12वीं शताब्दी में एक बहुत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिससे कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रतशिक्यों के वर्णों और पहले से इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट साडे लई की बनदा वा कि जेड़ा कलहण ही
ਉਹਨੇ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਲਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਹਣ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ-ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀ-ਐਸ-ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ कहते कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, ये ਜਿਹੜੇ 3 वंश ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 200 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 200 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਇਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਲੜੀ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਲੜੀ ਗਏ ਕਨੌਜ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਲੜੀ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 200 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਆਪਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਤੇ 3 ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰੈ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤ੍ਰੈ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ, ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? 200 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਜੇਲ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਲਾइन ਆਪਾਂ पढ़नी आ भी कोई छूट ना जावे। कहते कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वह एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। कहते भी वेखो, कहते राजा ने अपने आप को दिखाने लई मंदिरां दा निर्माण कीता ते जे कोई बाहरों आक्रमण हुंदे ही बाहर दे राजियां वालों ते मंदिरां नूं अपना निशाना बनाउंदे सी। क्यों? क्योंकि एक तां मंदिरां तो उन्हां नूं धन दौलत काफी मिल जांदी सी। फिर इन्हां ने इत्थे एग्जांपल दित्ती आ, गजनी दी एग्जांपल दित्ती आ। 1000 तो लैके ते 1025 तक कहंदे ने 17 हमले लगातार कीते आ ते बहुत सारे मंदिरां नूं लुੱਟਿਆ ते स्पैशली सोमनाथ दे मंदिर दी इन्हां ने गल कीती। गजनी बारे मैं पहला ही बहुत डिटेल दे नाल 2 तो 3 वीडियो पा चुकी हाँ, वो देखना। फिर इन्होंने क्या, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। चौहान का पहला नाम की सी? जिहड़े चौहान राजे सी चाहमान, बाद में उन्होंने नाम बदल के चौहान पिया सी। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤਰੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਗੌਰੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। उस तो बाद इन्होंने दिता वा चौड़ राज नजदीक एक नजर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ, कहते भी चौड़ वंश आ जिन्होंने सीटेट का पेपर देना उन्होंने लिए आ पॉइंट बजाय बहुत इंपोर्टेंट आ ते PSTET वाले ने ते रखना ही रखना याद। कहते कि चौड़ वंश सत्ता में कैसे आया? पूछा जा सकता वा, ये क्वेश्चन जिहड़ा वा पूछा ही गया ही भी जिहड़ा चौड़ वंश आ, ठीक है, चौड़ वंश आ जिहड़ा ये सत्ता दे विच किदां आया? कहते कि चौड़ वंश सत्ता में ऐसे आया, कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, ठीक है। पॉइंट नू समझो, कावेरी डेल्टा, ठीक है, कावेरी डेल्टा, ठीक है, कावेरी डेल्टा ते मुटियार, ठीक है, मुटियार सुट्टी लिखता, एक मिनट, मुटियार
ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਹੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਗਰ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਾਵੇਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਚੀपुਰਮ ਕੇ ਪੱਲਵ ਰਾਜਾओं के महंत ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੇ ਪੱਲਵ ਰਾਜੇ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੇ ਪੱਲਵ ਰਾਜੇ। ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਕੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲਵ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਵੇਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮੁਖੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਖੀਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੇ ਪੱਲਵ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮੰਤ ਸੀ। उरियार के चौल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार ने विजय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा कर लिया। कहते एक चौल वंश दा, ठीक है, फिर की होया, कहते चौल वंश दा केड़ा राजा आया, विजयाले। ठीक है, विजयाले, अच्छा किदां पऊगा विजयाले, हाँ विजयाले, कुछ इस तरीके दे नाल उन्होंने लिखिया वा विजयाले। चौल वंश दा राजा आया विजयाले ते उन्हें आ मुटियार नगर ते हमला करता ते कावेरी डेल्टे ते उन्हें की कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, कावेरी डेल्टे उन्हें कब्जा कर लिया। कब्जा करके फिर इन्हें तंजावर शहर वसाया। ठीक है, तंजावर किन्ने, विजयाले ने तंजावर जिहड़ा वा शहर वसाया ते एक इन्हें देवी दा मंदिर बनाया। ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट आ, निशुंभ सुदिनी। ठीक है, निशुंभ, ठीक है, निशुंभ सुदिनी, निशुंभ सुदिनी, निशुंभ सुदिनी ये देवी दा नाम आ। इस देवी दा इन्हें मंदिर बनाया। पॉइंट नोट कर लो, चौल वंश सत्ता दे विच किद्दां आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ क्योंकि CTET दे विच ये क्वेश्चन पूछा गया सी। कहंदे कि कावेरी डेल्टा दे लागे मुटियार नाम दा एक प्रसिद्ध नगर सी, उथों दा जिहड़ा मुखिया कोई परिवार सी, कांचीपुरम पल्लव राजे दे अधीन सी। कहंदे चौल वंश दा एक राजा आया, राजे दा की नाम आ, विजयाले, विजयाले राजे दा नाम आ। ठीक है, इन्हें की कीता, इन्हें इन्हां ते हमला करता, फिर इन्हें कावेरी डेल्टे ते कब्जा कर लिया। कब्जा करन तो बाद इन्हें तंजावर शहर वसाया। फिर इन्हें निशुंभ सुदिनी देवी नाम दा एक मंदिर जिहड़ा सी इन्हें बनाया। ये पॉइंट नूं तुसीं ने नोट करना है। ठीक है, फिर ये कहंदे आ राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसके गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभिमानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। यानी कि की गल कर रहे हैं आपां चौल वंश की गल कर रहे हैं। देखो कहते विजयाले के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य के हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चौल शासक था। हाँ, यानी कि विजयाले तो बाद विजयाला जिहड़ा सीगा राजा, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿਜयाले ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿਜयाले ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਥਮ। ਠੀਕ ਆ, ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਥਮ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਥਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਜयाले ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ, राजेंद्र प्रथम। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ राजेंद्र प्रथम ਆਇਆ। ठीक है, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, राजेंद्र प्रथम ने ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ, ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया देशां ते हमला कीता। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਮ याद रखने पूछा जा सकदा। राजेंद्र प्रसाद ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ठीक है, गंगा घाटी हो गया, ठीक है, गंगा घाटी हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया ते दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ।
उस तो बाद कहते राज और जिंदर प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोट चोलपुरम के मंदिर और राज्यपाल के मूर्ति कला की दृष्टि से चमत्कार है। हुण आपां गल करदे हां राज दी। जिहड़ा राज प्रथम सी इन्हें केड़ा मंदिर बनाया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जिहड़ा राज सीगा इन्हें तंजावर मंदिर बनाया। केड़ा मंदिर बनाया? तंजावर मंदिर बनाया। उस तो बाद जिहड़ा इहदा पुत्तर आउंदा वा राजिंदर प्रथम, जिहड़ा इहदा पुत्तर आउंदा वा राजिंदर प्रथम, ठीक है, इन्हें केड़ा मंदिर बनाया? मंदिर दा नाम ही बड़ा वड्डा वा, ठीक है, मैं तुहानूं दिखाउणी आ मंदिर दी फोटो भी इन्होंने बहुत सोहनी दित्ती आ। गंगई, ठीक है, गंगई कोट चोलपुरम, गंगई कोट चोलपुरम, ठीक है, किते मूंह च नाड़ दे स्पैलिंग है ना। देखो एडा वड्डा मंदिर दा नाम आ, यह राजिंदर प्रथम ने मंदिर आ बनाया। आ वेखो बहुत ही सोहना मंदिर, उपरों वड्डा, उपर हौली हौली जाके तिखा हो जाता वा, ठीक है। यह मंदिर जिहड़ा वा गंगई कोट चोलपुरम याद रखना किन्ने बनाया? राजिंदर प्रथम ने बनाया। ते जिहड़ा इहदा पिता सी राज प्रथम, उन्हें तंजावर मंदिर बनाया। किते उल्टा ना कर दिओ, फिर राजिंदर प्रथम ने तंजावर बनाया ते राज प्रथम ने गंगई कोट चोलपुरम, क्योंकि सानू मैचिंग भी आ जांदे हुंदे आ पेपर दे विच। इस पॉइंट नू तुसी ने याद रखना। फिर ये कहंदे आ चौल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन पर विशेष का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशिष्टता कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चौल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कहंदे जिहड़े आ मंदिर सी ना, इन्हां दा खर्चा किदां चलदा सी, क्योंकि इन्हां ने इत्थे कहा वा कि जिहड़े सीगे भूमि लोकां तो कर इकट्ठे कीते जांदे सी, ठीक है, भूमि तो, ठीक है, पुरोहित हो गए, मालाकार हो गए, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, किन्ने कोई आ, इन्हां सारियां तो जिहड़ा कर इकट्ठा करदे सी, उन्हां तो इह मंदिरां दा खर्चा चलदा सी। सब तो इंपॉर्टेंट गल इन्हां ने दसी आ भी ਇਹ ਮੰदिर सिर्फ ਤੇ सिर्फ पूजा आराधना ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ नहीं सी, ਇੱਥੇ बहुत सारियां प्रतिमावां चलदियां सी। कहण दा मतलब ਇਹ भी चौल शासक, चौल वंश ਦੇ दौरान जे सब तो ज्यादा किसी चित्रकारी का विकास होया वा ते ओ होया वा कांसे दी चित्रकारी, ठीक है। इन्हां मंदिरां दे विच कांसे दियां मूर्तियां बहुत ज्यादा कड़ियां जांदियां सी, ठीक है। आ वेखो ये इन्हां ने कांसे दी एक देवी दी मूर्ति दित्ती आ। ये चौल वंश दी बहुत वड्डी एग्जांपल आ भी कांसे दियां मूर्तियां ये बनाउंदे सी। कहंदे ज्यादातर प्रतिमाएं कांसे मूर्तियां जानी कि इन्हां दियां मिलदियां वा देवी देवतियां दियां मिलदियां वा ते उन्हां दे भगतां दियां भी मिलदियां वा। किते सानू पेपर दे विच पुछ लैण भी देवी दूजा अपना भी देवी देवते दियां कांसे दियां मूर्तियां मिलदियां ते दूजी ऑप्शन लिख देण भी भगतां दियां नहीं मिलदियां, ए सही आ, बी नहीं सही, बी सही आ, ए नहीं सही, इदां दे क्वेश्चन आउंदे हुंदे ना। सो पॉइंट नाल याद रखना वा कि भगतां दियां भी बनाउंदे सी, ठीक है। उस तो बाद कुछ ज्यादा जानकारी नहीं आ कृषि और सिंचाई दे बारे आ भी जिहड़ा सीगा सिंचाई करन लग पे सी, चौल दी खेती होण लग पई सी। ये कोई पॉइंट अपने लिए ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपां ज्यादा इंपॉर्टेंट कड्ढने इहदे विचों, ठीक है। उस तो बाद कहंदे भी आ सारे इन्हां ने खेती दे दस्से आ भी कि नदियां दे विच सिंचाई लई किद्दां पानी वगैरह कड्ढिया जांदा सी, वॉटएवर जो भी आ ना। मैं तुहानूं बुक दे चैप्टर दियां पिक ही जिहड़ियां PDF ही सेंड कर दिंदी हुंदी आ टैलीग्राम ते। सो मेरी कोशिश हुंदी आ कि तुसीं मेरी क्लास अटेंड करन तो बाद जो PDF मैं चैप्टर दी भेजी एक बारी खुद भी चैप्टर जिहड़ा रीड कर लेना वा, ठीक है। तो उस तो बाद मैं एक्सरसाइज भी भेजदी हुंदी, फिर मैं MCQ भी भेजदी हुंदी आ। उस तो बाद अगले पॉइंट ते आ जाओ। अगला पॉइंट जिहड़ा वा साडा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ। अगले पॉइंट ते इन्हां ने दस्सिया वा किसानां दियां बस्तियां जिहड़ियां ਉਹ चौल शासन दे विच की कहलाउंदियां सी। पॉइंट नोट करते जाओ, ठीक है। जिहड़ियां किसानां दियां बस्तियां सीगियां, जिहड़ियां किसानां दियां बस्तियां सीगियां, ਉਹ की कहलाउंदियां सी
और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पीएस ਟੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸੀ ਟੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਚੌਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ उर कहलाउंदियां ही प्रशासन किस प्रकार संगठित था किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी इस तरह के गांवों के समूह को नाडू किया जाता सी यानी कि पिंडां दे समूह जिथे खेती बहुत ही ज्यादा वधिया होगी पिंडां दे समूह जिथे खेती बहुत ही ज्यादा वधिया होगी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਡੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ पॉइंट नोट करते जाओ ठीक है कहते कि ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे ठीक है ग्राम परिषद हो गया ठीक है ग्राम परिषद ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਡੂ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਡੂ ਸੀ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ प्रशासनिक काम ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ धनी किसानों को केंद्रीय चौल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था ਕਹਿੰਦੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਡੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ प्रशासनिक काम ਜਿਹੜੇ बहुत सोहने करते सी उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चौल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाओं प्रदान करने वाला वेलन या किसान मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते 3 राज आ ठीक है आ पॉइंट ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ 3 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 3 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਵੇਂਦ ਵੇਲਣ ਠੀਕ ਆ ਮੁਵੇਂਦ ਵੇਲਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਵੇਂਦ ਵੇਲਣ ਕੀ ਸੀ 3 ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 1 ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੁਵੇਂਦ ਵੇਲਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੀਆਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਸੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ में महत्वपूर्ण राज किए पद सौंपे एरियार ठीक है एरियार ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ एरियार ਤੇ ਮੁਵੇਂਦ ਵੇਲਣ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ चौल अभिलेख में भूमि की विभिन्न कोटियों को लेख मिलता है विली वेलन गाई ठीक है वेलन नवगाई ठीक है मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਵੇਲਣ ਨਵਗਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸੀ ਇਹ ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਵੇਲਣ ਨਵਗਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸੀ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਠੀਕ ਆ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਠੀਕ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬਰਾਦੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬਰਾਦੋਏ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲਾ ਭੋਗ ਕਰ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ਾਲਾ ਭੋਗ ਕਰ ਇਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਲਾ ਭੋਗ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਲਾ ਭੋਗ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਾਨੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਭੋਗ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਵਦਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਵਦਾਨ ਤੇ 3 ਮੁੱਟਕੁੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਮੁੱਟਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 2 ਨਾਮ ਆ ਇੱਕੋ ਕਰਦੇ 2 ਨਾਮ ਆ
ਦੇਵਦਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ठीक है, मंदिरों के बारे पॉइंट नोट करते जाओ। ठीक है, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, मंदिरों को ठीक है उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, पल्ली चंदम, ठीक है पल्ली चंदम, ठीक है पल्ली चंद्रम, ठीक है पल्ली चंद्रम, पल्ली चंद्रम। ये किहड़ा सीगा, इत्थे इन्हां ने लिखिया वा गैर जैन संस्थानों को। ठीक है, जैनी जैनियां दियां जिहड़ियां संस्थावां सी, जैनी संस्थावां नूं दित्ता जाण वाला कर, जैनी संस्थावां नूं दित्ता जाण वाला कर। मैं थोड़ा फटाफट च लिखिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई, किते आ पॉइंट ना छड्ड दिओ, इन्हां नूं तुसीं जरूर नोट करना वा। ठीक है, उस तो बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा अगला पॉइंट मैं दस्सण जा रही हां, वो भी सीटेट दे पेपर विच पुछया गया ही, क्योंकि सानू पीएसटेट वाले की करदे आए, सीटेट दी कॉपी करदे आ। हुण मैं तुहानूं दस्सूंगी भी अगला क्वेश्चन इन्हां ने दस्सिया ही भी ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ कि सभा की सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये सारियां योग्यतावां, सारियां दी सारियां योग्यतावां जिहड़ियां वा, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੀ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ठीक है, कि कोई कहते कि जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो, यानी कि जिथों को भूमि का टैक्स इकट्ठा किया जाता होवे, ओहदे वो जिहड़ा भी उस सभा का मैंबर बनना चाहुंदा, ठीक है, ते ओहदे इलाके तो भूमि कर इकट्ठा किया जाता होवे, ये जरूरी है। ओहदे कोल आपदा घर होना चाहिए, ओहदी उम्र 35 ਤੋਂ 70 साल तक होनी चाहिए है, ਉਹਨੂੰ वेदां का ज्ञान होना चाहिए वा, ਉਹ ईमानदार होना चाहिए वा, प्रशासनिक ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ कहदा वा तजर्बा होना चाहिए वा। ठीक है, तो किसी होर समिति का जे वह मैंबर रहा वा फिर वो इस सभा का मैंबर नहीं बन सकता। ये सीटेट दे विच पुछया गया सी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। उन्होंने पूछा सी कि चौल वंश दे विच सभा का मैंबर बनने लई किहड़ियां योग्यतावां जरूरी आ। सो ये पॉइंट सी गए बहुत ही इंपॉर्टेंट। पार्ट दूजे दे विच ये साडा कवर हो गया सारा चैप्टर, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी सी ते इहनूं आपां 2 पार्ट दे विच कीता। पार्ट 1 जिहड़ा अपना ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हाँ, ते अज वाला अपना ये हैगा वा पार्ट 2। जिन्हां ने पार्ट 1 नहीं देखा दूजे चैप्टर का जरूर देख के आओ, फिर दूजे पार्ट ते पहुंचना, फिर तुहाडे चैप्टर के सारे डाउट क्लीयर हो जाणगे। हुण तक आपां की कर चुके हाँ, आपां 7वीं क्लास की NCERT दे हिस्टरी दे पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं। आ वाले 2 चैप्टर आपां ने कर लिया। हुण आपां अगली क्लास दे विच पहुंचांगे तीजे चैप्टर ते मिलदे आपां अगली वीडियो दे विच। सत श्री अकाल सारिआं नूं।